Yogaha Karmasu Kaushalam. I'm delighted to be here on behalf of Staff Academic College of Gujarat University. Number of times I have been invited on this platform, and thank you very much, Joshi sir and Brahmbhatt sir and Preeti. Thank you very much for giving me this opportunity to share my views and thoughts with all the participants. I think there are more than 42 participants are there. So really, I'm glad that good people are interested in administrative and academic leadership. So today my subject is academic leadership, but I would say this is not only academic leadership. The participants are administrative and academic leaders both, because I give more marks to the academic staff rather than the professors, because you all are backbone of this institution, and wherever you serve, I think you people should be an asset of your own institution, because if you cannot understand the importance of this backbone, uh, then you won't be able to uh, understand the whole academic scenario. First of all, let us understand that you people are not the civil servants like Sachivalaya staff or state government staff. You are an academic staff. You are having very high position in the field of administration, because you are going to face the young generation of the society. All the time, you will be delivering your thoughts, your uh, mm, the work profile, and your total administrative skill you are going to serve before the young generation of the society. But remember one thing: why you are in academic institution instead of Sachivalaya of the state government. To be a staff member of Sachivalaya of the state government or the central government is altogether a different thing. But when you are either in the university or in the research institute or in the colleges or in the schools, but remember, you are in the academic institutions. And academic institutions has to play the vital role to uplift the society. Not only that, but you have a chance to improve the quality of the performance of the young generation. That is very important. And very meticulously, I would say that you are at the place of the most higher positions of the institution. You may not be a principal, you may not be a professor, you are not the vice chancellor, but remember it: vice chancellors, administrators, or principals, or the professors, they are thorough academicians. They are not the key persons of administrations. You are the key person of the administration. Remember it. You may not be an engine driver, but without your green signal, no institution can run on the right track. So, I would say that education means to draw the attention. You are the attention. Education's, what is the motto of education? Education's motto is to draw the attention. And today, you are at the position of attention.
what is the fruits of education? What are the ways to get the highest fruits of the education? I would say yoga, concentration, your homework, and your ability to serve the information. Your ability to serve the information is very important so far as the administrative leadership is concerned. My dear friends, in the administration, so many times, what happens? Miscommunication. You can miscommunicate anything at any time, any moment, and for the long period also. But if you are having the right concept of your table work, then you will be able to guide your own institutions. So your academic leadership will be on the top of the total administration of the institution. Means your yoga means your concentration towards your work profile. What is your role in the institution? You may be a small bolt of the whole machinery. You may be a giant bolt of the machinery of the education. But if you do not have any idea of the academic institution, then what will happen? Any Tom and Dick and Harry can do your job at any time. That means you are not needed in the institution. If you realize that you are the key person of the institution, that means you are very faithful to your job. Whether you are a junior clerk, whether you are a senior clerk, whether you are a accountant, whether you are an office administrator, or you are at the higher position of the administration. But you should know your role, your performance, and importance as the key person of the institution. How you can achieve such goal as an administrator, as the leader of the administration? You must have the powerful memory power. Very important is your memory. If you know the total academic structure of your institution, then you can serve in the best manner. What is the structure of the academic performance of your institution? That is very important. Simply, you are not the clerk of the institution. Remember it. You are key person of your institution, because when you are appointed at your position, that means you are badly needed to the institution. Otherwise, आपकी अपॉइंटमेंट ही नहीं होती ना. अगर आपकी अपॉइंटमेंट हुई है तो समझ लीजिए कि you are going to play a very vital role in the academic institution. That means you are a very important person to the institution. अगर आपको ये मालूम है कि आप एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर आपकी ऑफिस में, आपकी इंस्टीट्यूशन में सबको मालूम होना चाहिए आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं, और आपके काम की अहम भूमिका क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत मायना रखती है. तो मतलब ये हुआ कि योर नॉलेज एंड योर मेमोरी पावर शुड बी अपडेटेड. आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन हो ये काफी नहीं है.
आपके पास इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान के बाद आपके पास विजडम भी होना चाहिए, आपके पास शाणपण भी होना चाहिए. If you are wise enough in the institution, you are more than a leader of your institution, because you know that you have come to serve the number of young people of your institution. So, मुझे लगता है कि आपका नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए. आपके नॉलेज अपडेटेड होने के लिए क्या करना चाहिए? एवरी डे you have to check the website of University Grant Commission, UGC, whether you are a clerk, whether you are an accountant, whether you are the assistant to the office, or you are a head of the office, or you are the academic administrator. Every day you have to check the website of UGC. Now in Gujarat, website of KCG, website of RUSA, and website of Higher Education Department. That means Commissioner of Higher Education. These four website every day you have to check, because every day number of things are going on, number of rules and regulations are getting changed. Our universities, different programs, different examination dates, and number of circulars are coming online. So you should be well versed with the computer. I think if you want to be a good academic leader, you should be computer savvy. You should be master in MS Office. You should know the different functions of your computer, whether it is a desktop or it is a laptop or on your mobile phone. You have to keep all the informations updated. Second characteristic is very important. You have to answerable to everybody. Don't feel that he is my junior university, maybe. Sir, I was talking about the updatation of the knowledge, whether it is a administrative knowledge, whether it is a knowledge of any new circular, whether it is a new data upcoming from the state government or from your university or office of your heads. But you should be updated. If you cannot remain updated with the day-to-day affairs, that means you are not faithful to your work, you are not faithful to your table, and you are not faithful to your institution. So this is very important characteristic, and this characteristic should be inbuilt. कर्ण था ना, कर्ण के पास जो सूर्य कवच था ना, बस आपके पास आपके टेबल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक कवच की तरह होना चाहिए. आपको आधी रात को नींद में से उठाने के बाद तुरंत पूछा जाए कि इसका क्या है, तो आपको उस सर्कुलर के बारे में, उस डिटेल्स के बारे में, उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए. दैट मीन्स दैट मीन्स you have to take care of your table. Remember, for 8 to 9 hours, you are supposed to work with your table. While on your table, don't entertain your relatives, your guests, or your friends. Because if you entertain others on your duty hours, that means you are getting disturbances to your work. Maybe some important matters may come from your family, from your friends,
from your colleagues, that time give little importance to it. But see to it that work on your table should not be suffered. If your work is suffered by your relatives, by your friends, by your colleagues, then do not entertain them at all. If your student is standing before you, and if you are chatting on your mobile phone for a long time, so remember it, you are doing injustice to you are doing injustice to your customer. Your students are your customer, sir. Your students are your customer. And always Gandhiji has said, give maximum importance to your customers, to your students. It shows your commitment to your work. Your commitment to your work is very important. And if you are really very important, then you are genuine person. You must show your genuinity. आपको मालूम होना चाहिए कि दिन में कितने घंटे मेरे टेबल पे किस किस्म के काम आते हैं और मुझे उसको बिफोर गोइंग बैक टू होम, बिफोर क्लोज डाउन माय टेबल वर्क, आई शुड फिनिश इट ऑफ. मैंने ऐसे कई सारे मिनिस्टर्स देखे हैं, कई सारे आईएएस ऑफिसर्स देखे हैं कि जब तक अपने टेबल का आज का काम वो आज शाम तक खत्म नहीं करते, they don't leave their offices. Maybe you should not be workaholic. I don't mean that. But at least, so far as the philosophy of the life is concerned, your attitude shows your commitment. Are you committed to your job or not? If you are committed to your job, you are the best leader of your institution. Third very important thing, कि if you are committed to your work profile, that means you are very genuine and very meticulous person. Administration is the big headache. Administration is very boring job. Administration is very burdenful work, but you have accepted it by your choice, not by compulsion. Because at the end of the every month, you are getting salary for that. Maybe less or more, that is a different issue. But at least when you have joined this job, you know that what kind of salary package you are going to get. Don't say that इतनी salary में इतना ही काम हो सकता है. No, no, not at all. You are not committed to your work. Am I audible, sir? Yes, sir. Okay. So आप अगर ऐसा मानते हो कि मेरी तनख्वाह इतनी है तो मैं इतना ही काम करूंगा, नहीं सर. आपके टेबल पे जो भी काम है वो आपकी तनख्वाह के बराबर का नहीं है. इस देश में चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, या कोई संसद सभ्य हो, या आईएएस ऑफिसर हो, या ऑर्डिनरी क्लर्क हो, या स्टेशन पे काम करने वाला हमाल हो, उसको अपनी मेहनत के मुताबिक कतई पैसे नहीं मिले हैं. इंडिया इज अ लो पेड कंट्री. इस देश में काम से कम पैसे दिए जाते हैं. इसलिए लोग अंडर टेबल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं. छोटा सा किसी का काम हो, कहीं 5 रुपये कोई ले लेते हैं, कहीं 10 रुपये ले लेते हैं, कहीं 200 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ले लेते हैं. नहीं मेरे यार, मत करो कभी ऐसा. यू आर इन पायस इंस्टीट्यूशन. योर पायस इंस्टीट्यूशन इज based on the नीव of the education. आपको कल कैसा भारत बनाना है, क्योंकि आपके सामने
देश की सबसे यंग जनरेशन काम कर रही है, सबसे यंग जनरेशन आपके पास कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर आती है, तो अगर आप बड़े प्यार से, बड़ी तमीज से, बड़ी होशियारी से, बड़े मेटिकुलसली और बड़े स्मार्टनेस से अगर काम कर लेते हो, तो सामने खड़ा हुआ युवान या युवती कितनी बड़ी आपके बारे में एक इंप्रेशन लेके जाता है. योर इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन योर मनी. माय डियर फ्रेंड्स, philosophically you should think that what impression is created by your attitude. Sometimes people unnecessarily delay the work, which work you can finish within 5 minutes. Sometimes your biases, your unlikefulness touches the opposite person, and that's why sometimes we are not ready to work for others. हम दूसरों के काम कई बार अपने एटीट्यूड की वजह से नहीं करते हैं. काम सिर्फ 5 मिनट का होता है, मगर उसको करने में हम 5 दिन लगा देते हैं. वाई दिस इज नॉट योर स्मार्टनेस. आपके ऊपर काम का बर्डन ज्यादा है, मगर स्मार्टनेस से काम कीजिए. योर स्मार्टनेस shows your qualitative performance. Your qualitative performance is important rather than the burden of the work. कभी मत सोचिए कि मेरे पे इतना बर्डन है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है. इस देश में कोई भी इंसान 8 घंटे अगर सही तरीके से काम करे, तो उसके पास रिलैक्सेशन के लिए ज्यादा वक्त होता है. मैं ये मानता हूं कि आजकल गवर्नमेंट ऑफिस से लेकर, यूनिवर्सिटी से लेकर, कॉलेजेस से लेकर स्कूल तक स्टाफ बहुत कम है, मगर आप उस काम को बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं कि 1 घंटा ये काम कर सकता हूं, दूसरे घंटे ये कर सकता हूं, तीसरे घंटे ये कर सकता हूं. गिव प्रॉपर टाइम टू प्रॉपर वर्क. और दूसरों की मदद लेने में भी कभी अपने आप को छोटा मत समझो. अगर आपसे कोई छोटा आदमी भी थोड़ा ज्यादा नॉलेज रखता है, तो उससे पूछ लिया करो, उसको प्यार से आपके काम में इन्वॉल्व करो. अगर आप फ्री है, तो उसके काम में इंटरेस्ट लेकर उसकी मदद किया करो. फिर देखो तुम्हारे टेबल का काम कितना इजी हो जाता है. अगर आप किसी को मदद करने के लिए तैयार हैं, तो समझ लीजिए हर कोई बंदा आपके काम के लिए आपके पास खड़ा रहेगा. मगर इफ यू आर शोइंग द एटीट्यूड बाय नॉट डूइंग अदर्स वर्क, इट इज नॉट माय जॉब, व्हाई शुड आई केयर फॉर अदर्स. नो, इट इज योर इंस्टीट्यूशन, इट इज योर ऑफिस. The opposite person is going to carry out the whole image of the institution, and you are the part and parcel of the institution. ये समझना चाहिए हमें कि हमारी अहम भूमिका क्या है. अगर हमारे बाजू के टेबल पे कोई अच्छे ढंग से जवाब नहीं देते हैं, तो आप उसकी मदद में पहुंच जाइए, उसको सही तरीके से समझाइए, विनम्र होकर समझाइए कि हमारे सामने जो खड़े हैं वो हमारी इंस्टीट्यूशन की क्या इमेज लेके जाएंगे. नॉट ओनली योर इमेज, बट यू आर गोइंग टू राइज द इमेज ऑफ योर इंस्टीट्यूशन. और आजकल सबसे ज्यादा बच्चों की जो सबसे ज्यादा फरियाद होती है, वो ये होती है कि यूनिवर्सिटी ऑफिस, college office, institutions office, school offices are not responding properly. हम पढ़े लिखे लोग हैं, विनम्रता हमारे लहू में बसी है. तो मैं मानता हूं कि ये हमारे
लहू में जुड़ा हुआ है, तो हमें याद रखना चाहिए कि माय इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द पर्सन शुड कैरी right impression of mine along with my institution. तो हम जिस इंस्टीट्यूशन से तनख्वाह लेते हैं, जहां से हमारे बच्चे पलते हैं, जहां से मेरे घर में दाना पानी रोटी आती है, उसके साथ मैं कैसे बेईमानी करूं, उसके साथ मैं कैसे अनफेथफुल हूं, उसके काम में बाधा डालूं, ये कैसे हो सकता है? This philosophical thought always should prevail in your mind. If this thought prevail in your mind, then and then you can be a wonderful academic leader. आपको ये बात भी समझ में रखनी होगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सिर्फ काम होता है। ये मेरी हैसियत से बहुत छोटा काम है। समझ लीजिए, जिस दिन ये ख्याल आपके दिमाग में आया, तब समझ लीजिए कि काम बड़ा होता है, आप बहुत छोटे बन जाते हैं। हम लोग ड्रामा के आर्टिस्ट हैं, तो चंद्रकांत भाई एक इंसिडेंट सुनाता हूं आपको कि आपने नसीरुद्दीन शाह को कितनी सारी फिल्मों में देखा होगा, मगर वो जब दिल्ली की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ते थे, तो उनके टीचर ने इतने बड़े एक्टर को एक ही काम सौंपा था कि पूरे नाटक में 2.5 घंटे तक उसको भाला लेकर सिर्फ एक सोल्जर की तरह खड़े रहना है। सिर्फ भाला लेके नसीरुद्दीन शाह जैसा इतना बड़ा एक्टर ड्रामा में सिर्फ भाला लेके खड़ा रहता है। आप नहीं मानोगे, उसके पास एक भी डायलॉग नहीं था पूरे नाटक में, मगर थ्रू आउट द प्ले ही हैज टू स्टैंड विथ हिज वेपन इन द हैंड। और दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में रिमार्क्स आई, तो 15 से ज्यादा लाइन सिर्फ ये सोल्जर के बारे में कमेंट्स लिखी गई थी कि कितना होशियार, कितना होनहार, कितनी सलूकाई से ये सोल्जर अपने काम को निभा रहा था, और ये कोई छोटा एक्टर नहीं था, ये बहुत जाना माना हुआ एक्टर नसीरुद्दीन शाह था। अब समझिए कि ही वॉज सपोज टू परफॉर्म द मेजर रोल इन द प्ले, बट डायरेक्टर हैज गिवन हिम द वन ऑर्डिनरी वर्क, मगर उसने काम बखूबी निभाया। तो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उसी के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट्स थी। सोचिए, काम कतई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, और काम को कितनी स्मार्टनेस से, कितनी सलूकाई से, कितनी बखूबी आप निभाते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे एक नम्र निवेदन यह है कि चाहे कोई भी टेबल का काम आपके पास आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपके लिए वो काम की अहमियत बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द एकेडमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उसको समझ लेना चाहिए। नंबर वन थिंग, किसी के ऑफिस में से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, प्लीज उनको बोलो ना कि उनका ऑडियो म्यूट करे। somebody is making lot of noise from his office. मुझे ये पता चलता है, 21 साल में प्रिंसिपल रहा हूं, तो मुझे ये लगा कि मेरी इंस्टीट्यूशन पूरे स्टेट में नंबर 1 होनी चाहिए। ये सिर्फ प्रिंसिपल का ख्याल था, मगर आप नहीं मानोगे, मेरी कॉलेज का अकाउंटेंट, मेरी कॉलेज का ऑफिस सुपरिटेंडेंट, मेरी कॉलेज का टाइपिस्ट, मेरी कॉलेज के जूनियर क्लर्क, मेरी कॉलेज के सीनियर क्लर्क, सभी के दिमाग में यही ड्रीम रहा कि माय इंस्टीट्यूशन शुड बी द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ गुजरात।
सोचो कि मैंने ये श्रेष्ठता का ख्याल परगोलेट करने की कोशिश की और मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स ने, जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स थे, उन लोगों ने उसको बखूबी निभाया और लगातार 5 साल तक HK Arts College was declared in India today as one of the best college of Gujarat. UGC has given award to my institution, Best Reputed College of UGC. 7.5 लाख रुपया का अवार्ड मुझे मिला था। उसका श्रेय मैं मेरे ऑफिस स्टाफ को और मेरे एकेडमिक स्टाफ को देता हूं, क्योंकि मेरे एकेडमिक स्टाफ में सारे स्टाफ मेंबर्स अपने टेबल का जो भी काम था वो बखूबी निभाया करते थे। एंड स्टूडेंट्स वेर वेरी हैप्पी विथ माय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। सो मुझे लगता है कि आप, चाहे आप आकाश भाई हो या नरेंद्र भाई हो या राजेश भाई हो या आप शिंदे साहब हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, उनके बेस्ट परफॉर्मेंसेस नंबर 1 पे खड़ी हो सकती है। What are the 7 criteria of the NAC? What are the new changing profile of NAC? What are the new factors which are counted in the NAC accreditation? अगर आपकी संस्था का A ग्रेड हो तो आपको भी तो क्रेडिट मिलती है ना, आपको भी अच्छा लगता है कि मैं A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस में नौकरी कर रहा हूं। ये भी तो होना चाहिए ना। सिर्फ स्टूडेंट्स ये क्रेडिट ले इतना नहीं, प्रिंसिपल क्रेडिट ले इतना नहीं, वाइस चांसलर क्रेडिट ले इतना नहीं। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में हूं वो इंस्टीट्यूशन मेरी वजह से ए ग्रेड इंस्टीट्यूशन है। ये अभिमान हमारा होना चाहिए, ये गौरव हमारा होना चाहिए, ताकि हम हमारी ऑफिस के बेस्ट लीडर की हैसियत से हम काम कर सके। सो नैक एक्रेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नैक एक्रेडिटेशन में कॉलेज के एक स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल और ये कैडर में जितने भी सारे लोग बीच में आते हैं, सबकी अहम भूमिका है। NAC is asking all the office staff members, NAC is asking teaching staff members, NAC is asking peons, NAC is taking care of toilets and bathrooms, and NAC is watching your library, behavior of your staff, and they get the feedback from the students that how is office staff, how is library staff, how is your librarian's attitude towards the students. All different kind of feedback NAC is taking. So समझ लीजिए कि NAC में जो भी बच्चे आपके बारे में जब अभिप्राय देते हैं तो वो क्या देते हैं, आपका नाम नंबर 1 स्टाफ मेंबर में आना चाहिए। हर एक को पता होना चाहिए कि ये बंदे के टेबल पे जाएंगे तो कभी हमें कोई काम की मना नहीं होगी। इतना ही नहीं, मगर बेखूबी से, वेरी स्मार्टली ही विल फिनिश माय वर्क। ये बात भी उनको मालूम होनी चाहिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, बी ऑनेस्ट टू योर इंस्टीट्यूशन, बी फेथफुल टू योर स्टूडेंट्स। नो रॉन्ग प्रैक्टिसेस, no wrong practices. Please, 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 I request you all. Those who wants to be a great leader, they should be honest, they should be pious, they should be faithful, and no land grabbing, money grabbing, no wrong work. Please.
किसी की भी अनड्यू फेवर मत कीजिए। नो अनड्यू फेवर ऑफ एनीबडी। अगर आपका बच्चा आपकी इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है तो भी याद रखिए, टू पे द फीस ही शुड ऑल्सो सेंड इन अ क्यू। नो पार्शियलिटी टू एनीबडी, नो फेवरिज्म। रूल्स आर रूल्स। बी स्टिक टू रूल इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई रूल ऐसे होते हैं कि जो स्टूडेंट्स को नुकसान करते हैं, तो फिलोसॉफिकली पूरे रूल को बदलने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक स्टूडेंट का फेवर करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसके पीछे दूसरा खड़ा है, वो देखता है और उसे मालूम है कि मेरे आगे वाले की फेवर हुई है, मेरी नहीं हो रही है। तो व्हाट इंप्रेशन ही विल कैरी अबाउट यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि नो फेवरिज्म, स्टिक टू द लॉज, स्टिक टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और इसलिए कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उसके एक्ट होते हैं, उस रूल्स होते हैं, और उसके मुताबिक इंस्टीट्यूशन चलती है। तो जो इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से हमें चलाना हो, उस इंस्टीट्यूशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम सबको मालूम होना चाहिए। अगर हमारे नजर के सामने कोई सीनियर आदमी आता है और एक जूनियर आदमी या एक क्लर्क या अपना ऑफिस स्टाफ अपने टीचिंग का इंसल्ट करते हैं, बड़ी आवाज से बोलते हैं, उसके सामने शाउटिंग करते हैं, तो प्लीज प्लीज ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दैट पर्सन और उनको बोलो कि वो हमारे सीनियर है, वो हमारे इंस्टीट्यूशन के एकेडमिक स्टाफ मेंबर्स है, वो हमारे एक साहब है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। उनको रोकिए, उनको बोलिए कि यहां कोई रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं चलती है। अगर आपने एक बार किसी की भी फेवर करके रॉन्ग प्रैक्टिस की, तो समझ लो कि आप असूलों में बिक गए हो, and you will not be able to be remain as faithful person to yourself, your own principles and your institutions. एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा, क्या आप आपके काम के प्रति कॉन्फिडेंट है? आपको जो काम सौंपा गया है, आप जो काम कर रहे हैं, वेदर you are the top of the institution or you are the junior most of the institution, but आप आपके काम के बारे में कॉन्फिडेंट है? अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, सीखने की कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंट लीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से आप आपके काम को कीजिए, ताकि आपकी स्मार्टनेस बाहर आएगी। आप आपके काम को अगर एक कॉन्फिडेंस से कर पाओगे, तो देख लेना कि लोग की आंखों में आपके प्रति आदर बढ़ जाएगा, आपके प्रति प्यार बढ़ जाएगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर वर्क। एंड सेकेंड थिंग, हाउ फार यू आर मेटिकुलस। कुछ लोग काम करने में कई घंटे लगा लेते हैं, छोटा सा काम हो, मगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनको काम करने में बहुत देर लगती है। जिनको काम करने में बहुत देर लगती है, उनको मेटिकुलस बनना पड़ेगा। ये जो समय आया है ना, वो बहुत स्मार्ट वर्क का समय आ गया है। और सेकंड थिंग, तुम्हारे सामने जो जनरेशन आके खड़ी है, वो तो आपसे कई गुना स्मार्ट है। आपको जो काम करने में 1 घंटा लगता है, वो काम करने वो 5 मिनट में फिनिश कर लेते हैं। वो इतनी स्मार्ट जनरेशन है हमारे सामने। तो उनके आगे तुम्हें उनसे भी ज्यादा स्मार्टपन दिखाना है। कम से कम उनसे ज्यादा स्मार्ट ना बनो तो कोई बात नहीं, मगर उनको मालूम होना चाहिए कि आप जेन्युइन बहुत है, आपके काम के प्रति आप जेन्युइन है। तो ये एक एकेडमिक लीडर की हैसियत से
आपकी इसके बारे में अहम भूमिका होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क, डिसेंट वर्क, स्पीडी वर्क एंड मेटिकुलस वर्क, दिस 4 very important characteristic of any academic leader। अगर आप ये कर पाते हो तो समझ लीजिए कि आप आपकी इंस्टीट्यूशन के इंपॉर्टेंट बोल्ट है। यू मे नॉट बी अ जायंट बोल्ट ऑफ योर एकेडमिक मशीनरी, बट कार में एक छोटा सा भी बोल्ट अगर ढीला हो गया, एक छोटा सा भी बोल्ट ठीक से काम नहीं करता है, तो कार में आवाज आना शुरू हो जाती है कि नहीं? आपकी इंस्टीट्यूशन में आपकी इस तरह की आवाज कतई कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपका जो काम है उसमें से म्यूजिक आना चाहिए। जिंगल बेल की तरह एक काम आपका इतना शोभा देने वाला होना चाहिए ताकि सबको पता चले कि अगर ये बंदे को कोई भी काम दिया जाए वो पहले समझ लेगा, फिर ठीक से करेगा और उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका रिजल्ट 100% आपको मिलना चाहिए, और मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या आई थिंक मेरे पास अभी कुछ वक्त है कि मैं फिनिश करूं। चंद्रकांत भाई, चंद्रकांत भाई कुछ मिनट है मेरे पास अभी? हाँ, यस सर। मेरे पास वक्त है, मैं अभी कंटिन्यू हाँ, करूं ना अभी? 5-10 और क्वेरी भी सर, किसी को कुछ बात करनी है आपसे, तो इसलिए भी आपका आवाज नहीं आ रहा है उसके सर। बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। जी सर, अगेन जी माय सर। वॉइस है गॉन? नहीं, यस, कंटिन्यू आ रहा अभी है आई? सर। यस सर, ओके, आ रहा है। थैंक यू जी चंद्रकांत भाई। हाँ, सो योर वर्क शुड बी डिसेंट, स्मार्ट वर्क, मेटिकुलस होना चाहिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एबीसीडी ऑफ माय टेबल। आकाश क्रिश्चियन, आप बड़े ध्यान से सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि आप हर एक शब्द को देख रहे हैं कि मेरा कहने का मायना क्या है, और इससे पता चलता है कि आप लोग पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड बी विजनरी पर्सन। अगर समझ लीजिए हिना जी कि आपकी इंस्टीट्यूशन अगर स्मार्ट वर्क नहीं कर रही है और आपको लगता है कि इस काम को इस तरह से करने के बजाय इस तरह से करने से और अच्छा हो सकता है, देन डू इट, प्रूव इट, शो टू योर एल्डरली पर्सन्स, और उनको बताने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके काम का एप्रिसिएशन कैसा हो रहा है। ये बात सतई याद रखना है। और मेरे ख्याल से एक बात बहुत याद रखनी चाहिए, आपका काम कोई देखता हो या न देखता हो, मगर ऊपर वाला तो देखता ही है। रिमेंबर इट, गॉड इज वॉचिंग यू। Every end of the month you are getting salary. That salary should be a pious salary which is entering in your home. गलत तरीके से अगर आप बिना काम किए कुछ भी तनख्वाह घर में लेके जाते हो तो समझ लीजिए ये तनख्वाह डबल होकर बाहर चली जाएगी, आपका नुकसान होगा। यू शुड बी पायस इनफ कि मैंने इस महीने के अंत में मेरी जो तनख्वाह ली है वो पूरी ऑनेस्टी से, पूरी वफादारी से, पूरा मेरे काम का निचोड़ डालकर मैंने मेहनत से, लगन से काम किया है,
उसकी ये तनख्वाह है मेरी। और हर महीने के अंत में भगवान के सामने खड़े होकर जरूर प्रार्थना करें कि मेरे पास कोई गलत काम न करवाए, मेरा काम एक ऑनेस्ट पर्सन तरह होना चाहिए, और मेरे काम की कोई कद्र करे या न करे, बट माय डियर गॉड, यू आर देयर एंड आई एम ऑनेस्ट टू यू। सच्चाई उभर कर आएगी आप में, एक अपने आप में एक लीडर, अपने आप में एक हिम्मत वाला इंसान जागेगा, और आपको किसी का डर नहीं लगेगा कभी। सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ पीपल आर अफ्रेड इन देयर ओन एनवायरमेंट, बट इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ, यू विल नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, रिमेंबर इट। और ये सबसे बड़ी बात है कि यू डोंट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, क्योंकि यू आर वेरी फेथफुल। और ही होता है कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता है, वो होता है फुल ऑफ थॉट्स, फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑफ रिजल्ट्स। इससे एक इंस्टीट्यूशन की इमेज बनती है, चाहे वो एक पेड़ के नीचे इंस्टीट्यूशन हो या चाहे 100 मंजिल का मकान क्यों ना हो, मगर गलत कामों से कोई बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, मगर सही तरीके से सही काम सही वक्त पे करने से एक इमेज बनती है। रिमेंबर इट, यू आर द बिल्डर ऑफ योर इंस्टीट्यूशंस इमेज। इमेज बहुत बड़ी बात होती है। आज पॉलिटिकल सिनारियो में देखिए, सोशल सिनारियो में देखिए, कॉरपोरेट वर्ल्ड में देखिए, या तो एकेडमिक स्ट्रक्चर में देखिए, इमेज, हमारी क्या इमेज सोसाइटी में खड़ी हो रही है, वो सबसे अहम बात है। और इस इमेज के लिए लोग मर मिटते हैं, इमेज के लिए लोग अपने असूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, यूनिवर्सिटी एक लाइव हैपनिंग है। योर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज अ लाइव हैपनिंग, इट नॉट सिंपली अ बिल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। ये ईंट चूने का बना हुआ मकान नहीं है, ये एक जीवंत प्रोसेस है, एक घटना है, एक उपक्रम है जो दिन ब दिन चलता रहता है, और आने वाली हमारी कई पीढ़ियां हमसे बहुत अच्छा कुछ सीख के बाहर जाती है। इसलिए सोक्रेटिस के बाद सोक्रेटिस वॉज थॉट्स मोबाइल यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी जो है वो परस्यूएट ऑफ एक्सलेंस होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी मीन्स पारमिता की उपासना, ज्ञान का सागर जहां बहता हो, उस सागर में आप खुद खड़े हो, और आप उस नॉलेज को अपडेट करते हुए हर बच्चे के दिलो दिमाग में उसको ठोपते हो, और उसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम डेवलप करते हो। Academic institutions is to develop the wisdom. It's not only the institution of information. इंफॉर्मेशन से एक स्टेप आगे नॉलेज होता है, और नॉलेज से एक स्टेप आगे विजडम होता है। आपके काम में आपका विजडम दिखाई देना चाहिए, आपके काम में आपकी ज्ञान उपासना दिखाई देनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे एकेडमिक लीडर्स बन सकते हैं। Think of yourself and feel that you are the important person of the university, of the academic institution, of your office. I thank you very much
for giving me this opportunity to be a part of this academic platform. सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे मेरे ख्यालात आपके साथ शेयर करने की इजाजत दी, इसलिए सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर.